Okay, so very good afternoon to everyone. Uh, Sorry for troubling you this Saturday, unfortunately, because I continuously this week, previous week, which was this week was I was quite engaged with the other formalities and other responsibilities for my college side. So I could not take the proper classes from my end. So that's why I took the this compensate class today. So those who are joined me and listen to me, thank you for joining. On behalf of my request, you joined that. So thank you for that. And spending your time for 30 minutes to me is highly thankful. So I'm going to teach you today about the guest special request, which I started in the some group of the classes in the previous week, and I already covered some little bit topic about that. So I hope some who had did not join in the physically classes might be they know what is guest special request and what are the components of that. So this is the topic which I cover the handling what is kind of guest special request it is and how we deal with that. In generally, the hotel housekeeping department started this with the interaction with the guest and make a solution same to the guest priorities base, and sometimes the guest will also interact with the same thing too, and request any kind of things from the housekeeping department, and housekeeping needs to fulfill accordingly. So there are various types of things which I started with the earlier. Quickly rewind with that a definition. What is a guest special request? It is a housekeeping department which generally deal that. It's also called guest loan item, which will give to the guest on behalf of his request. So various loan items we can give to him: scissors, hot water bag, nail cutters, iron board, furniture items. These are all already I mentioned. I'm quickly reminding that. And there's some other things which are chargeable base, which can be given to the guest on behalf of his request, but we generally can implement some charges. It can be minute charges rate as per the policy, as per the rules by the different set of the properties in the various sectors. So these are the list which have already given. I surely give the notes to you. There's no problem in that. You can quickly rewind this. All out machines, all these are the list which can be chargeable basis, apart from which are not chargeable. Non chargeable items like shampoo, hair oil, combs, these are the towels are non chargeable, but some are chargeable which are extrally provided by the housekeeping department in the various sectors. So I quickly, and after that, I started with some points we need to be mentioned for the guest request. So I started with the first point, that is once the guest request special items, it is recorded. It is recorded in the guest special request register, or you can say the guest call register, message register by the control desk supervisor, who's basically handling from the housekeeping department all kind of requests. It is basically the control desk supervisor who generally handle this. So this is the first point which I might be I also mentioned, but I'm again saying that uh, these are the special. Whenever we do something towards the guest, we generally make a record for that, so that we can make satisfied to the second shift or third shift if this request has been fulfilled from our end, so that other shifts, other people can understand properly the what kind of message it was, what kind of things given to them, and what with which time it has been given to the guest. So that is why these registers are important in the housekeeping department. So these registers called as a guest request register or guest call register or message register. Second point was the concerned GRA floor supervisor is informed so that a particular request is attended at the earliest. Means what the particular, if you request something to the guest, guest is requesting to the HK housekeeping department, and housekeeping department control desk supervisor receive that call, and after giving the fulfillment to the guest, so he contact the GRA or floor supervisor to fulfill that demand which is guest requesting from particular floor. It can be first floor, second floor, whatever the floor it is. So it is need to be demanded by the GRA or
full floor supervisor can easily give to the guest, because they generally mostly found in the particular floors in different sector as per their work schedule. The time receiving for request from the guest and the time request being forwarded to floor supervisor. This is also the important point need to be at the time of guest. What kind of which time which we receive the guest, we need to note down that time also. And time being forwarded means that this is the line which need to be when we forward the same message to particular floor supervisor or your GRA, that this is the time where we receive the request and this is the time why we forward that request. Means इसका मतलब क्या है कि सिंपल भाषा में कि किस टाइम पे रिक्वेस्ट आई थी गेस्ट की हमारी तरफ से कि अगर उन्हें रूम नंबर 201 ने हेयर ऑयल मांगा है हमसे एट द टाइम ऑफ 12:55 PM, देन सेम नीड टू बी फॉरवर्ड। हमने 110 पे पर्टिकुलर जीआरए को फ्लोर को कॉल किया या फ्लोर सुपरवाइजर को कॉल किया 110 पे, तो 12:55 का भी टाइम नोट किया जाएगा और 110 का भी टाइम नोट किया जाएगा, ताकि बाइफिकेशन चेक किया जाए कितने टाइम पे गेस्ट की रिक्वेस्ट फुलफिल हुई है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट का मतलब है द GRA फ्लोर सुपरवाइजर अकॉर्डिंग टेक अप्रोप्रिएट एक्शन दैट इज गेस्ट रिक्वेस्ट इज फिल्ड। यानी कि इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो GRA या फ्लोर सुपरवाइजर्स होते हैं वो अपना एक्शन अकॉर्डिंगली लेते हैं एज पर द गेस्ट रिक्वेस्ट। यानी कि जिस तरीके का एक्शन लेना हो, हमें सपोज हमें फेस टॉवल का एक्शन लेना तो हम फेस टॉवल का रिक्वायरमेंट देंगे, हमें हैंड टॉवल का रिक्वायरमेंट देना तो हैंड टॉवल का। तो जो गेस्ट की डिमांड होगी उस हिसाब से हम उस एक्शन को अप्रोप्रिएट पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट है वंस द रिक्वायरमेंट द गेस्ट इज फुली फिल्ड द फ्लोर सुपरवाइजर गिव्स फॉलो अप टू द कंट्रोल डेस्क। एक बार जब रिक्वायरमेंट फुल हो जाती है या गेस्ट की नीड्स फुल हो जाती है या गेस्ट की जो डिमांड थी हमारी तरफ से वो हमने दे दी उनको या फिलअप कर दी, तो हम वो फ्लोर सुपरवाइजर जो होते हैं या GRA जो होते हैं वो कंट्रोल डेस्क को ये इन्फॉर्म करते हैं कि इस टाइम पे आपका वो गेस्ट रिक्वेस्ट जो आई थी वो हमने फुलफिल कर दी है, ताकि वो टाइम भी नोट किया जाए। The items given on special request are recorded in the floor register floor। जो भी गेस्ट की रिक्वेस्ट होती है related to his things which always recorded फ्लोर रजिस्टर या फ्लोर लॉग बुक में हम एंट्रीज करते हैं एज पर द पॉलिसी। ये डिफरेंट होटल्स में अपनी अपनी पॉलिसी सेट की जाती है, तो इट इज नॉट कि फ्लोर रजिस्टर पे ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह are also made on the occupancy board। ऐसी कोई जो एंट्रीज होती है जो ऑक्यूपेंसी बोर्ड पे भी मेंशन की जाती है, लॉग बुक पे मेंशन की जाती है, वो क्या एंट्री होती है कि पर्टिकुलर गेस्ट की रिक्वेस्ट आई थी रूम नंबर 101 से, तो 101 में क्रॉस लगाया जाएगा और जब तक वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होती तब तक उसको टिक नहीं किया जाएगा फ्रॉम द कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर। सपोज 101 ने रिक्वेस्ट की थी 12:55 पे, क्रॉस तब तक लगा रहेगा जब वो आपने पास किया मैसेज, उसका टाइम नोट किया आपने, फिर उसने जब आपको फॉलो अप बैक किया कि 130 पे उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, तब उस 101 के आगे टिक लगाते हैं। ये एक छोटा सा एक बोर्ड हमारे कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर के पास होता है ताकि पर्टिकुलर फ्लोर को वो उस हिसाब से मेंटेन कर सके, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। आई कैन मेक यू चार्ट इन द फिजिकली, आई विल अंडरस्टैंड दिस। तो ये वो पॉइंट है। नेक्स्ट है द एंट्रीज आर आल्सो इन केस द गेस्ट इज चेकिंग आउट द गेस्ट रिक्वेस्ट आइटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रूम एंड द इंफॉर्मेशन इरेज फ्रॉम द बोर्ड। अगर जैसे ही गेस्ट चेकआउट हो जाता है उस रूम से, तो वो जो भी हमने आर एन बोर्ड आपने प्लेस किया था उनके रूम पे या कोई भी एक्स्ट्रा बेड आपने प्लेस किया था वो वहां से रिमूव कर, तो इंफॉर्मेशन वो वहां से हटा दी जाती है बोर्ड से, ताकि वो फर्दर किसी और रूम में इस्तेमाल हो सके। तो ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल डेस्क हैंडल करते हैं, कंट्रोल डेस्क सुपरवाइजर हैंडल करता है और बोर्ड पर्टिकुलरली इसका वो फॉर्मेट होता है। The special request items are handled by the one shift to another। एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट को इंफॉर्मेशन कैसे पास कर सकते हैं हम, कि जैसे हम एक लॉग बुक पे एंट्रीज करते हैं इन इन चीजों की रिक्वेस्ट आई है, सपोज 101 ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी मगर उसकी वो फिलअप नहीं हुई थी, बट आपकी शिफ्ट खत्म हो गई है एग्जांपल के तौर पे, तो आप वो नेक्स्ट शिफ्ट को वो हैंड ओवर कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर मैसेज क्या चीज मांगी गई थी, किस टाइम पे मांगी गई थी और किस समय पे उनको वो चीज चाहिए, ये सारी चीजें वन शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में पास हो सकती है।
नेक्स्ट था हैंडलिंग गेस्ट कंप्लेंट्स। गेस्ट कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप में से मुझे कोई सुन रहा है तो आप बता सकता है गेस्ट कंप्लेंट। आपने शायद फ्रंट ऑफिस में भी पढ़ा होगा ये टर्म। एनीबडी नो? एट सिंगल लाइन में कोई बता सकता है मुझे? बाकी सामने तो दिखेगा, इसके अलावा कोई अगर सिंगल लाइन में When the कहना चाहे गेस्ट कंप्लेंट। when the guest is dissatisfied by any service. सर सेटिस्फाई कैसे वर्ड आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं? गेस्ट कंप्लेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सेटिस्फाई तो हुआ ही नहीं ना, तभी तो कंप्लेंट हुई है। Yes, so that's why I used the term dissatisfied by any service. So सेटिस्फाई तो आपने सेटिस्फाई से नहीं, मैं टर्म पूछ रहा हूँ सर। गेस्ट कंप्लेंट, कंप्लेंट को थोड़ा सा फोकस करके सोचिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे, या आप क्या एक्सप्रेस करना। डिससेटिस्फाई चलो मैं आपका एक प्लूरल वर्ड ले सकता हूँ, बट कंप्लेंट को डिससेटिस्फाई नहीं कह सकते हम सर। और कोई? एनीबडी एल्स? so any resentment expressed by the guest. ठीक है, एक्सप्रेशन ओके, मैं मान लिया, एक्सप्रेशन इज ओके। चलिए कोई बात नहीं, एक ने ट्राई किया उसके लिए थैंक यू, आपने कुछ हद तक सही कहा। बट व्हाट इज गेस्ट कंप्लेंट? बेसिकली कंप्लेंट का मतलब क्या है? तो अपना एक रिग्रेट किसी के सामने रखना। अपना रिग्रेट क्या हो सकता है? रिग्रेट मतलब मैंने आपसे एक चीज मांगी थी, एग्जाम्पल के तौर पे जूस मांगा मैंने, और आपने मेरे को, मैंने लीची मांगा, आपने मुझे मैंगो प्रोवाइड कर दिया, और उसके बदले जब मैं लीची जूस आपसे एक्सप्रेस वे में मांग रहा हूँ, तो आई नीड टू बी लीची जूस सेम। आई कांट रेजिस्ट द अदर जूस। अगर मुझे खाली अदर जूस देना होता तो मैं खाली जूस बोलता, मैं लीची जूस स्पेसिफाई नहीं करता। तो जब हम कोई चीज स्पेसिफाई करते हैं, गेस्ट कोई चीज स्पेसिफाई करते हैं और फिर उनको वो चीज नहीं मिलती है, तो वहां पे उसकी इग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, वहां उसका डिस्प्लेजर स्टार्ट होता है, वहां आपका ये वर्ड डिससेटिस्फाइड स्टार्ट होता है। So complaint is that kind of thing. To express the regression, resentment, or displeasure, which can be caused a various consequences towards any of the department. It's not only the talking about the can complain, guest can complain to him, and they are faced ready to consequence any kind of thing. तो ठीक है, तो ये होती है हैंडलिंग गेस्ट कंप्लेंट्स। ये कंप्लेंट का मतलब था। अब आगे बात करते हैं जनरली गेस्ट कैसे कंप्लेन करते हैं। मोस्टली गेस्ट हेट टू कंप्लेन एंड विल थिंक बिफोर दे से समथिंग। जनरली अवॉइड किया जाता है कंप्लेन को करना गेस्ट की तरफ, मगर अगर वो किसी वजह से नाराज है तो डेफिनेटली उस वक्त कंप्लेंट होगी। when they do complain it may because of something major। जब कभी भी कंप्लेंट का रूप होता है तो डेफिनेटली कोई मेजर वाली बात हुई है तभी कंप्लेंट हुई है, बट मोर ऑफन इट इज अ रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ लिटिल थिंग्स दैट हैव टू बी बिल्ट अप पॉइंट वेयर जस्ट वन मोर थिंग मेक्स दैट गेट स्नैप। इसका लाइन का क्या मतलब है कि कंप्लेंट तो हो सकती है, बट कभी मेजर तौर पे जब कंप्लेंट होती है तभी हम लोग उसको सीरियसली लेते हैं, बट हम कुछ माइन्यूट थिंग्स छोड़ देते हैं, कभी छोटी मोटी चीजें हम छोड़ देते हैं जिसको बिल्टअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कोई जी आ गए, हाउसकीपिंग है, और आपने गैस का डोर नॉक किया, आपने 3 बार नॉक किया, गैस ने नहीं खोला, आपने अपनी कीन ली और ओपन कर दिया रूम। क्या हमें ये स्टेप फॉलो करना चाहिए? या दूसरी सिचुएशन है कि आपने 3 बार नॉक किया और फिर आपने अपना डिपार्टमेंट अनाउंस किया और फिर से गेस्ट को अपनी तरफ से बोलने की कोशिश की, इज दियर एनी दियर। ये मेथड कंप्लेंट आ सकता है या फर्स्ट मेथड पे आप कंप्लेंट कर सकते हो? सर सेकंड। एनीबॉडी? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं? मेरा फर्स्ट ही था सर बिकॉज गेस्ट जो है तो Why वो not एंग्री first? हो जाएगा। हाँ, एंग्री हो जाएगा, बिल्कुल। अब हमने गलती कहां पे की है? यहाँ पे कोई बता सकता है मुझे? कंप्लेंट हमने खुद क्रिएट की या गेस्ट की तरफ से क्रिएट हुई है? अभी
सर हमने खुद कंप्लेंट क्रिएट की है। हमने क्रिएट की है ना, हम क्रिएट sir. खुद ही कर लिए। जब हमने क्रिएट खुद ही कर ली, डेफिनेटली डिस्प्रेजल तो होगा ही वहां पे, तो कंप्लेंट का रूप आएगा ही। ठीक है, तो डेफिनेटली इन छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हम ये कंप्लेंट को रूप ना दें। तो दैट इज व्हाई इट इज लाइन सीरीज ऑफ लिटिल थिंग्स। लिटिल थिंग्स का मतलब होता है आप इन बातों को हम कभी कभी भूल जाते हैं, अपने काम की वजह से, अपने प्रेशर की वजह से, अपने किसी और माइंडसेट की वजह से कभी कभी ये चीजें भूल जाते हैं, तो वो कंप्लेंट का रूप दे सकती है। Sometimes the complaint may be totally unrelated to housekeeping department or employee by the guest still accept to solve the problem. ऐसी भी कभी कंप्लेंट आती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जो कि उनके रिलेटेड ही नहीं होती है, या उस एम्प्लॉय का कोई कसूर भी नहीं होता है, बट फिर भी गेस्ट को सोल्यूशन आप ही से चाहिए। एनीबडी नो ऐसी कहां कौन सी कंप्लेंट आ सकती है? एग्जाम्पल कोई बता सकता है मुझे, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल पूछूं किसी से? एनीबडी कोई ट्राई करना चाहे कि जो एग्जाम्पल बता सके कि ऐसी कभी कंप्लेंट होती है जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, ना उस एम्प्लॉय से रिलेटेड है, बट फिर भी गेस्ट को आप ही से सोल्यूशन चाहिए। हाउ यू डू द सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट? So like front office department. मेरा क्वेश्चन समझ आया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, इज इट ओके टू ऑल? Yes, sir. Sir, when the guest calls for bellboy and he doesn't arrive at that time maybe the guest complains keeping person, and since he is not related to his department. तो आप ये कहना चाह रहे हो, आप उसने बेल बॉय को कॉल किया उसका गेस्ट चेकआउट लेने के लिए, और कॉल लगा दिया उसने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को कि बेल बॉय आ नहीं रहा है, राइट? Yes, sir. इज इट दैट? इज इट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? आप यही कहना चाह रहे हो? No, sir. I want to say that he has called to the reception for the bellboy, but since the bellboy hasn't arrived at time, and so the guest complained at housekeeping department or वही तो मैं any. Yes, sir. इट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो उसने रिसेप्शन को कॉल लगाया, बोला बेल बॉय भेजने, उसने कॉल लगाया हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, मगर बुलाया उसने बेल बॉय को है अपना सामान उठाने के लिए। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बेल बॉय कैसे भेजेगा? आप ये कहना चाह रहे हो? Yes, sir. ठीक है, आपकी एग्जाम्पल ठीक है कुछ हद तक, बट मेरा मानना है कि जब हम कभी अनरिलेटेड एक्सपीरियंस कहते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को, इट कैन बी अ सर्विस F&B रिलेटेड। एक एग्जाम्पल और है, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, कि हमने गेस्ट ने अपनी ट्रे रख दी। जनरली हम इस चीज को, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और कॉमन कंप्लेंट भी हो जाती है। गेस्ट ने फूड सर्विस ऑर्डर किया था, फूड सर्विस लाया F&B डिपार्टमेंट ने, F&B डिपार्टमेंट ने फूड सर्विस किया। क्लियरेंस गेस्ट ने सोने से पहले वो अपना टेबल बाहर रख दिया, अपने रूम के बाहर, राइट? रूम के बाहर ट्रे रखी गई है जो कि F&B डिपार्टमेंट ने पिकअप नहीं की किसी वजह से, या कोई रीजंस है नहीं कर पाए। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट वहां से अपनी क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की ट्रॉली, या जिया गया अपना क्लीनिंग इक्विपमेंट की ट्रॉली वहां से लेके जा रहा था सफाई करने। उसने वो ट्रे देखी, गेस्ट ने उसको बोला इसको क्लियर कर दीजिए। उसने कहा कि सर ओके, इट्स नॉट माय इनकम इन माय डिपार्टमेंट, आई विल इन्फॉर्म द कंसर्न डिपार्टमेंट। या उसने दूसरे मेथड पे वो ट्रे उठाई और लेके चल लिया अपनी ट्रॉली में और कहीं दूसरी जगह पे रख दी। कंप्लेंट कौन सी है, पहली वाली या दूसरी वाली? कौन सी आइडेंटिफिकेशन है सर पहली वाली। जिससे हमें पता चले कि कंप्लेंट नहीं आएगी इससे? First सोल्यूशन कौन वाली. सा हो सकता है इसमें? बेस्ट The सोल्यूशन second जो वाली. जियागे ने पहला वाला किया या सेकंड वाला? Second. तो सेकंड।
कोई है लिसन कर रहा है? सर सेकंड वाली। सेकंड वाला है कि फर्स्ट वाला है, बस ये बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड। जी आगे ने जो स्टेप उठाया, पहला उसने उठाया था कि गेस्ट को बोला सर इट इज नॉट कम इन माय डिपार्टमेंट, आई विल कॉल द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। सेकंड उसने वो ट्रे उठाई, अपनी ट्रॉली पे रखी और कहीं और छोड़ दी। कौन सी सर कंप्लेंट सेकंड वाला सॉल्यूशन दिया उसने उसको, गेस्ट को? The second one. हाँ जी सर जीआरए ने आवाज नहीं आ रही किसी की। वो ट्रे उठाई और अपनी ट्रॉली में रखी और कहीं और रख दिया। सर वो है हाँ सॉल्यूशन। जी सेकंड वन सर। सेकेंड वन। कितने लोग एग्री है? 26 लोग सुन रहे हैं मुझे। कितने लोग? सभी लोग एग्री है? 29 अब आ गए। 29 सभी लोग एग्री है जो ये 2 पर्सन मुझसे आंसर दे रहे हैं? एवरीबॉडी इज एग्री? सर मेरे हिसाब से फर्स्ट होनी चाहिए। चलिए 2 ही एग्री लग रहे हैं, बाकी शायद अपनी अच्छी पोजीशन पे होंगे। तो 2 लोग जो अभी जिनने एग्री किया है इस बात पे, वो कंप्लेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अगर गेस्ट को ये कह दिया कि इट इज नॉट कम इन माय डिपार्टमेंट, डेफिनेटली वो कंप्लेंट में और कंप्लेंट जुड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि गेस्ट को नहीं पता आप हाउसकीपिंग के हो कि F&B के हो। ही ओनली नीड्स टू क्लियर दैट प्लेट फ्रॉम हिज रूम। तो डेफिनेटली वो प्लेट अगर जियागे ने वहां से उठा के एक फ्लोर पेंट्री में रख दी, फ्लोर पेंट्री में वो प्लेस करेगा और वहां से वो F&B डिपार्टमेंट को बोलेगा काइंडली पिकअप योर दिस ट्रे जो हमने आपके रूम से यहाँ से उठाई है। ठीक है, तो दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो 2 पर्सन जिसने आंसर दिया था, गुड फॉर दैट। तो व्हाई डू गेस्ट कंप्लेंट? गेस्ट जनरली कंप्लेंट क्यों करते हैं, ये भी रीजंस हमें पता होना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस में भी अनएक्सेप्टेबल, जैसा उन्होंने सोचा था या जैसे उनको प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे या सर्विस मिलनी चाहिए थी, उसके अपोजिट कर दिया हमने सब कुछ, तो कंप्लेंट हो गई। द चॉइस और ऑफर इज लिमिटेड। द चॉइस एंड ऑफर इज लिमिटेड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन? रिलेटेड टू व्हाट? हमने कौन सी चॉइस उनको कम दी, या कौन सी चीजें ऐसी हो सकती है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो लिमिटेड होती है? एनीबॉडी, आप कोई एग्जांपल बता सकते हो? सर एमिनिटीज। एच के डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। सर कंप्लेंट अगर एमिनिटीज। की है आपने, तो आपने जो चॉइस दी या किसी चीज में आपने उनको ऑफर किया कुछ, तो वो लिमिटेड था उनके लिए, उनको ज्यादा चाहिए था आपसे, तो क्या कह सकते हैं? कोई एग्जांपल किसी के थॉट में आ रहा है, किसी के दिमाग में आ रहा कुछ? सर एमिनिटीज। किसी के थॉट में कुछ नहीं आ रहा है? सर एमिनिटीज एमिनिटीज। हाँ सर बिल्कुल, चलो किसी के दिमाग में तो आया एमिनिटीज। सर स्पेसिफाई भी कीजिए ना, कोई एग्जांपल दीजिए ना, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ। एमिनिटीज तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी, फिर मैं लिस्ट खोलूंगा तो फिर आप लाइक बोलेंगे कौन सा पिक। लाइक सोप शैम्पू कंडीशनर लाइक दैट। शैम्पू कंडीशनर कम पड़ गया उसको और उसने ज्यादा मांगा था आपसे, आप तो रोज उसको रिप्लेस करते हो सर, तो ऑफर लिमिटेड कहाँ हुआ? यस। जिसको आप रिप्लेस नहीं करते डेली, उसके बारे में सोचिए ना। शैम्पू कंडीशनर आप जब सर्विस करते हैं, जी आगे रूम में सर्विस करते हैं, उनको आधा दिखता है या कम दिखता है, वो रिप्लेस नया करने ही जाते हैं ना सर, नया तो लग ही जाता है वहां पे, तो ऑफर लिमिटेड का कैसे हो गया? ऐसी चीज जो हम उनको दोबारा ना दे सके। सर होता बेड। है कुछ हाउसकीपिंग में, या हम हर वक्त देते ही कहते हैं? सर बेड बेड। बेड? व्हाट डू यू मीन बेड? बेड मतलब बेड के दोबारा दोगे उनको? नो सर, मतलब लाइक सर पिलो पिलो। हाँ कुछ हद तक सही जा रहे हो, पिल्लो दोबारा नहीं दिए जा सकते दो के। यस सर। और नाइस। क्या मैं पर्दे डेली वॉश करके उनको दे सकता हूँ? नो सर नो सर नो सर नो सर। सर क्या कारपेट। क्या
टीवी के यूनिट्स, टीवी के सिस्टम्स उनको डेली वॉश की दी जा सकती है, सफाई कर गए, डेली कर गए उसकी सफाई, और निकाल के वापस लगा दिया, फिर सुबह शाम की सर्विस करते गए, क्या ये पॉसिबल है? Sir, hair No, sir. dryer, बट iron, curtain, carpet. बोल कारपेट तो वन ऑफ द रीजन है, कारपेट तो मैं उसको सेकेंडरी लेके चलूंगा, क्योंकि कारपेट तो उठाया डेली नहीं जा सकता। कारपेट शैम्पूइंग की अगर बात करो तो डेफिनेटली वो हो सकता है, बट मैं यहाँ पे ऑफर की बात कर, चॉइस जो हम गेस्ट को देते हैं, सपोज आपने एक टूथपेस्ट दिया या शेविंग किट दी, छोटी एग्जाम्पल बात करते हैं, शेविंग किट आपने ऑफर कर दी, एक बार दे दिया आपने, वो अब आपको वो चाह रहा है, आप उसके नंबर ऑफ पैक्स है 2 एज पर द स्टैंडर्ड, तो 2 आप दोगे, बट वो 4 चाह रहा है आपसे, 2 की जगह 2 और दो, क्या आप दे पाओगे, ऑफर कर पाओगे? वहां एक्सक्यूजेस हमारे बढ़ जाते हैं अपनी तरफ से, तो वो भी गेस्ट कंप्लेंट का रूप लेती है, और गेस्ट को बुरा लग जाता है, भैया तुमने मुझे, मैंने 4 मांगे थे, तुमने मुझे 2 दिए, मैं 2 की कंप्लेंट लेके जाऊंगा। तो ये इस पॉइंट का छोटा सा है कि मतलब कभी कभी कंप्लेंट छोटी सी छोटी बातों को भी रूप देती है। नेक्स्ट है द रॉन्ग प्रोडक्ट इज ऑफर्ड, ये डेफिनेटली कंप्लेंट है, अगर कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आपने गेस्ट को ऑफर कर दिया तो डेफिनेटली कंप्लेंट तो होनी है। Am I audible? Hello, Yes, sir. am I audible? Yes, sir. Some network issue Yes, sir. there. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Hello, am I audible? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. Yeah, some network issue is, sorry for interruption, some network issue is there from my Okay, end. no problem. Yes, sir. Okay, so timing is wrong and delay, sir. This is the best example called laundry service. The laundry service is the best example for this. Whenever we do the laundry service, is it screen is visible to all? Yes, sir. Screen is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. Okay. The timing is wrong. The second, fourth point is timing is wrong or delay service. The best example for this is laundry. Whenever we pick up the laundry from the guest room, we always mention the timing over there. But unfortunately, the time will require more. We need to inform the guest that there is a delay service from our end due to this kind of thing. So this also can goes the complaint against the housekeeping department. Okay. Frustration due to the treatment of guests received. This is the mostly commonly generally found nowadays. After getting guest
highly compatible. He's complaining to you and treating you not as a good. So due to that treatment, frustration also goes the guest in that way. So guest receive whatever the you receive to the guest. If we do not proper give it to the answer to them, do not listen them properly. So that creates the frustration level to the guest, and he show that complaint in the manner. So these are the reasons why the guest generally complains and in their formation. What they expect from us. Why? What does the guest expect when he lodge a complaint? क्या solution होता है उसको, उसके मन में क्या thought होते हैं complaint करने के बाद? It must be remembered that it requires effort on the part of guest to lodge a complaint. It is not easy. तो complaint को कभी भी हल्के में नहीं लेना है हमें. जो भी उसने कहा है उसकी properly listen करना है. उसके बाद गेस्ट जब स्ट्रेस होता है या प्रोसेस में होता है, उस वक्त वो एक्सपेक्ट करता है कंप्लेंट उसकी सुनी जाए और उसका सॉल्यूशंस किया जाए. तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस क्या है इसके? टू बी ट्रीटेड कोटियसली, बहुत माइन्यूटली उनकी वो बात सुनी जाए, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट अपनी तरफ से दिया जाए या सॉल्यूशंस दिया जाए. टू बी बिलीव्ड, उनकी बातों पे यकीन होना चाहिए हमें कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, दे आर राइट, एंड वी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे और उनके डिसीजंस को रेक्टिफाई करने की या सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से होना चाहिए. तो ऐसे थॉट्स जो एक पर्सन से और उनकी जो इंफॉर्मेशन है कि ये नहीं कि मैंने उनकी आज एक जीआरए ने उनकी बात सुनी तो दूसरे जीआरए को पास कर दिया, भाई तुम हैंडल कर लेना, फिर तीसरे ने चौथे को कह दिया, चौथे ने पांचवे को. ये पास ऑन की कंप्लेंट नहीं चलेगी. आपको डेफिनेटली एक पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा और उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी. टू बिलीव दैट एस्टैब्लिशमेंट वैल्यूज देम, ये उनको बिलीव करवाना है कि हम लोगों को उनकी केयर है, उनकी वैल्यू है, तभी वो हमारे कस्टमर हाई प्रोफाइल कस्टमर है. तो प्लीज दैट प्रॉब्लम विल नॉट हैपन अगेन, ये भी उनको बिलीव करवाना पड़ेगा कि आपकी वो प्रॉब्लम हम दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा रिपीट हमारी तरफ से नहीं होगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम गेस्ट को कैसे कंप्लेंट लेके चलें. और गेस्ट डज नॉट वांट आर्ग्यूमेंट, कभी भी गेस्ट के आर्ग्यूमेंट पे मत पड़िए, क्योंकि अगर वो कभी बोल रहा है, सबसे बेस्ट ये होता है कि उसको बोलने दीजिए. उसके बाद जब उसने बोलना खत्म किया, फिर हम उसको काम डाउनली पीसफुली ये पॉइंट्स के हिसाब से सीक्रेटली उसका वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. ठीक है जी. तो यहां तक है इसका पॉइंट. एक पार्ट रह गया, वो विल डू इट फिजिकली टू यू, एंड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है तब तक, अगर कंप्लेंट को लेके या गेस्ट रिक्वेस्ट को लेके. एनीबॉडी कोई क्वेश्चन है तो मन में तो पूछ सकता है. हेलो. Okay, okay to all. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible to all? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. You are Okay जी, audible, sir. किसी का कोई क्वेश्चन है तो इस टॉपिक को लेके प्लीज बताइए. कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी? No, sir. No, sir.
लगता नहीं है तो Monday onwards I will continue this session and with the next topic and completing this topic before with the other groups also as per the schedule. I will take the class. So thank you so much for joining to me and spending your 30 minutes, almost 35 minutes to meet me. And thank you all of you. I will take attendance now to all, whatever the people are here. 29 people are showing. So I will take the attendance for that. In semester. Okay, ji, 29 people. Thank you so much. Attendance is taken. Thank you for joining the class. Thank you, sir.